सर आपकी आवाज कट हो रही है। वासे तारिक साहब। सर वासे उनकी लाइट नहीं है, उन्होंने मैसेज कर दिया था कि उनकी लाइट नहीं है, तो अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। चलिए न्यू शेयर कर देता हूँ। वासे साहब की लाइट चली गई है। और कौन मौजूद है? ये नॉइस पॉल्यूशन किसकी है? आरिफ साहब मौजूद हैं? हमीज महमूद, फर्रुख रजा। क्या हो गया भाई, सारे लोग किधर गायब हो गए आज? सर जी मेरी प्रेजेंटेशन मिली आपको? कौन सी? लैंग्वेजेस ऑफ कंप्यूटर। सबीन, ये मैं आपकी प्रेजेंटेशन शुरू कर रहा हूँ। फिलहाल तो मुझे ये मिली है। जी बिस्मिल्लाह। सबीन यस सर, आई एम जी स्टार्ट करें प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। Today my topic is my जोर presentation से आपकी आवाज पूरी नहीं आ रही है। Today my presentation topic is mental health. So next slide. Sir next slide कर दें। ये वही तो की है मैंने। व्हाट इज मेंटल हेल्थ, मेंटल इलनेस एंड इट्स टाइप, इसी पे हूँ मैं। आपको नजर नहीं आ रही है? I'll talk about mental health, mental illness and its types, how can we treat mental illness, and why mental health is important. Moving towards mental health. Mental health is not just the absence of mental disorder. It is defined as a state of well-being in which every individual realizes his or her own potential, can cope up with the normal stresses of life, can work productively and fruitfully, and is able to make a contribution to her or his community and stay happy with his family and friends. Next slide. This is the cycle of mental health. Thoughts and beliefs are the main source which affects our mental health. How? If we change our thinking, we will experience a change in our emotions, which will influence our choice of behaviors. And then these behaviors sooner or later will generate consequences, for example, social relationships, career, legal, finances, and physical. And these consequences reinforce our belief system. So we make sure that what we are thinking, because this is the main source which affects our health, mental health. Next slide. Sir, mental illness. This is very important to talk about mental illness. It is also called mental health disorders. Refers to a wide range of mental health conditions. This is the disorder that affects our mood, thinking, and behavior. Examples of mental illness include depression, anxiety disorders, schizophrenia, eating disorders, and addictive behavior. There are numerous types of mental disorders, mental illness. First of all, anxiety disorder. It is a group of mental health disorders that include generalized anxiety disorder, social phobia, OCD, this is very common, obsessive compulsive disorder, and post-traumatic stress disorder. It is the type of disorder in which include our childhood trauma or any car accident which affects in our childhood. Next. Behavioral and emotional disorder. This is very common in children. It includes oppositional defiant disorder, conduct disorder, and attention
defect hyperactivity disorder. The treatment of this behavioral and emotional disorder is it includes therapy, education, and medications. Bipolar affective disorder is very common because it is a mood disorder which we experience in our daily life. For example, sometimes we feel bored, sometimes we feel depression, and sometimes we live normal and happy life. Next. Depression is also a mood disorder. It is characterized by lower of mood, loss of interest and enjoyment, and reduced energy. It is not just feeling sad, it is illness. Symptoms of depression can lead to increased risk of suicidal thoughts or behaviors. There are many types of depression. Other one is dissociative and dissociation disorder. This is a mental process where a person disconnects from their thoughts, as you can see from figure, that a person can, in this disorder, person is disconnected from his feeling, from his thoughts and memories. He doesn't know his identity sometimes. The next is paranoia. It is the irrational and persistent feeling that people feel fear that someone is out to get that person. This is the delusional disorder or schizophrenia. The treatment includes medication and psychological support. Next. How we can see ourselves that we are mentally healthy? There are some characteristics of a mentally healthy person. First of all, a mentally healthy person feels comfortable about himself. Means he knows his strength, his weaknesses. He feels reasonably secure and adequate. He neither underestimates his own ability. The mentally healthy person feels right towards others. This means that he is able to be interested in others and to love them. He is able to like and trust others. The mentally healthy person is able to meet the demands of life. He is not bowled over by his own emotions of fear, anger, love, or guilt. He is happy and he lives with his family with happily. Yeah, sometimes we feel sad and we are out of our mind, but this is not the disorder. Why mental health is an important topic? I think mental health is the most important topic because it affects how we think, feel, and act. It also helps determine how we handle stress, relate to others, and make healthy choices. Mental health is important at every stage of life, from childhood and adolescence to adulthood. Mental health problems can lead to other problems such as experimenting with drugs and alcohols, taking risk in behavior, doing suicide, or being hostile and aggressive. Yes. Mental health is just as important as physical health because if we have healthy body plus healthy mind, we can live happy life. That's it. अच्छा, अब आप बताइए जरा इस प्रेजेंटेशन में क्या कमी है? एनीबॉडी, एनी कमेंट? इससे पहले कि मैं अपनी राय दूं आपको। ओके, सबीन, इसके अंदर दो आपने बड़ी गलतियां की बुनियादी तौर पे। देखें, प्रेजेंटेशन करते वक्त पहली चीज जो आपको बनाते वक्त पावर पॉइंट में आपको 70-80 ऑप्शन आते हैं स्लाइड सिलेक्शन के, ठीक है? तो आपको बैकग्राउंड वो सिलेक्ट करना है जो कि लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके, अट्रैक्टिव बैकग्राउंड हो। आपकी तस्वीरें, आपके स्माइली और सब चीजें बहुत अच्छी, कंटेंट बहुत अच्छे, लेकिन प्रॉब्लम सबसे बड़ी आपकी प्रेजेंटेशन के अंदर ये है कि जो आपने स्लाइड पे लिखा है वही आप पढ़ रही हैं। देयर इज नथिंग मोर टू ऐड। ये प्रेजेंटेशन का कर्स है। प्रेजेंटेशन के अंदर आपके पास ये जो चीजें आप हमें बता रही थी, ये नोट्स की शक्ल में होनी चाहिए। और ये जो पॉइंट, कोई भी पॉइंट आप उठा लें, मैं आपकी प्रेजेंटेशन में वापस जा रहा हूँ। जैसे आपने डिप्रेशन का जिक्र किया, ठीक है ना? तो डिप्रेशन के बाद एक, ये जो पूरी आपने डेफिनेशन लिखी है डिप्रेशन की और जिसको आपने पूरा पढ़ा है, ये एक तस्वीर होनी चाहिए थी और इसको आप अपने वर्बलाइज कर रही होती अपने पास। जो चीज स्क्रीन पे आ रही है आपका ऑडियंस उसको पढ़ सकता है, ठीक है? इफ यू हैव गॉट नथिंग मोर टू ऐड टू व्हाट यू हैव रिटन ऑन द स्क्रीन और योर स्लाइड, यू विल लूज योर ऑडियंस। तो ये बुनियादी बात है। और मुझे नहीं पता कि आगे लोगों ने कैसी बनाई, क्योंकि मैंने ज्यादा गौर से देखी नहीं है।
क्योंकि कल मैंने रात को सारी डाउनलोड करके आप लोगों को की थी। तो एक तो नंबर 1 बैकग्राउंड सिलेक्शन जो होता है स्लाइड का, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्लाइड कंजेस्टेड नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अब अगर इसी स्लाइड के ऊपर आप सिर्फ डिप्रेशन के आगे एक तस्वीर देती हैं और आप इसी जो आपने यहाँ लिखा है, इसको आप अपने पास नोट्स के ऊपर आपके पास हो तो और आप इसको बोल देती, दिस वुड हैव बीन वेरी गुड प्रेजेंटेशन। तो राइट नाउ इट इज नॉट ए गुड प्रेजेंटेशन, इन 2 वजूहात की वजह से। एक तो आपका बैकग्राउंड सिलेक्शन जो अच्छा नहीं है, व्हाइट के ऊपर जो चीजें नजर आ रही हैं वो उसकी जो फॉन्ट है वो भी आपका इतना कोई प्रोमिनेंट फॉन्ट नहीं है। नंबर 3 सबसे बड़ी बात ये कि जो आपने लिखा है उसी को आपने पढ़ा है, यू डिडंट हैड एनीथिंग टू ऐड। तो आई होप कि ये जो आपकी तरबियत का एक हिस्सा है, इससे ना घबराइएगा कि जी ये प्रेजेंटेशन खराब हो गई, कुछ हो गया। आइंदा के लिए ताकि आपको पता चल जाए कि आपने प्रेजेंटेशन किस तरह बना। ओके जनाब, मिस सबीन, कोई कमेंट आपके मेरे कमेंट के ऊपर? आपका कोई कमेंट, कोई एक्सप्लेनेशन? नहीं आ रही। ठीक है, ये बहुत अहम होता है प्रेजेंटेशन करते वक्त कि डू नॉट लूज योर ऑडियंस। जिस तरह हम स्पीच में कहते हैं ना, जो आपको मैं बता रहा था कि किसी भी सूरत में स्पीच में आपको अपने ऑडियंस को लूज नहीं करना। जिस वक्त आपने ऑडियंस को लूज कर दिया, आपके जो नॉलेज ट्रांसफर है, ये जो आप काम करने जा रहे हैं, ये जो आप पॉइंट स्ट्रेस करने जा रहे हैं, आप उनको लूज कर देते हैं। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। ओके, अब आप ये ना पूछिएगा कि मैंने कितने नंबर दिए, वो बाद में दूंगा मैं आपको। सर थैंक ओके, यू। अच्छा जी, सबीन हो गई। अब नेक्स्ट कौन है? आरिफ साहब मौजूद हैं? नहीं, आरिफ सर तो आपको नहीं है। मेरी प्रेजेंटेशन मिली? उमर बिन जावेद। उमर बिन जावेद साहब, आपकी मुझे प्रेजेंटेशन मिल तो गई, मिल जाएगी। अभी और कौन कौन मौजूद है? ये फर्रुख खुदा साहब मौजूद हैं? सर सर हमीज। मेरी मिल गई अब्दुल अजीज सर। अरे भाई अपनी छोड़ो, अभी जो ये जो नजर आ रहे हैं स्क्रीन पे, इनमें से कौन मौजूद है? अस्सलाम वालेकुम सर। हमीज। मैं मौजूद हूँ, सैफ अली खान। जी, सर मैं भी मौजूद हूँ। नाम अब्दुल क्या है अजीज। आपका भाई? अब्दुल अजीज सर। ये नॉइज वाली किसकी प्रेजेंटेशन है? जमाल साहब मौजूद हैं? मुराद साहब मौजूद हैं? जी सर। मुराद आप मौजूद हैं? चलिए शुरू कीजिए मुराद साहब। मुराद साहब, मुराद साहब, आपको आवाज आ रही है, नहीं आ रही है? सर मुराद क्लास में नहीं है। हमीज मौजूद है? नहीं है? फर्रुख यस रजा सर। साहब? सर जी, हमीज। हमीद साहब मौजूद हैं आप? हमीज। यस सर। चलिए शुरू कीजिए। Assalamu alaikum. My name is Mohammed Hamiz Mahmood and today I am going to deliver my presentation of communication आराम से skill. रेलगाड़ी मत छोड़ो, आराम से। जी चलिए। Okay. The topic of my presentation is barriers to effective communication. Next slide. There are a number of barriers to communication which may occur at any stage of the process, and these barriers often interrupt the entire flow of communication and result in the failure of interpersonal communication. These barriers are physical barrier, organizational barrier, cultural barrier, technology barrier. Now I'm going to discuss in detail each of them. So next slide. So the first one is physical barrier. Physical barrier are a result of our surroundings, that is our physical environment. It is the most common barrier which arises due to time, place, distance, space between sender and receiver of the message, disturbance in the medium of communication like noise, etc. Some of them are easy to alter, whereas some may prove to be a tough obstacles in the process of effective communication. These factors may just cause destruction or totally alter the message, causing miscommunication. Next slide.
Organizational barriers. Organizational barriers refers to the disruption in the process of communication amongst the members of organization like managers, supervisors, employees, and directors, etc. This type of barrier occurs due to inappropriate information transmission system, lack of supervision, undefined role and responsibilities, organizational rules and policies, and complex organizational structure. This can be avoided by using direct and simple language in communication. So next slide. भाई मैं नेक्स्ट स्लाइड So the third one is cultural barrier. जी When people of different cultures are unable to understand each other, this is called cultural barrier. This is because due to the difference in culture of parties to communication, words may be understood in a different ways due to body language, which causes miscommunication. That's why you might have noticed that when a person possesses a knowledge of different cultures, he or she can communicate effectively and better than others with the people belonging to another culture. This barrier also arises due to mindset and manners of people belonging to different culture. So next slide. The last one is technology barrier. As we all know, technology has helped the people to communicate faster and better than before. Both within the organization and outside the organization, technology barrier is specifically related to the medium of communication, which should be the latest and advanced for an effective communication flow. However, both the parties should be using the same technology to communicate effectively, or else the communication would be difficult. It is caused by outdated or old software technology, mode of communication that is online or offline, and accessibility barrier, etc. So next slide. Now, how to overcome these barriers to communication? There are certain ways which can help in overcoming the barriers to communication, and does it prevents confusion and misunderstanding which took place between sender and recipient of the message. These are employee orientation. The new trainees should be informed about companies' plans, policies, procedures, and authority relation. Developing good interpersonal relation. Good interpersonal relationships should be developed and maintained in the organization, which helps in the accomplishment of goals. For this purpose, status differences should be shelved, suggestion and valid criticism should be appreciated. Third one is active listening. Active listening is a key to effective communication. It implies complete attention and showing interest what is being said and giving the speaker proper time and opportunity to state his viewpoint and not prematurely assuming anything. Use of proper body language, dialect, and gesture. You might have heard that action and deeds speak louder and clearer than words. And so proper body language and gestures are to be used while communicating the message. Otherwise, it may lead to communication failure. Use of latest technology. To minimize the disruption during the communication process, one should use latest technology, which not only makes communication better, but faster also. And last one is feedback. Feedback is the most important part of every communication process. Communication is said to be meaningful and effective when the feedback is received at the end of process. So next slide. So here I conclude my presentation with Netrunner quote that good communication is the bridge between confusion and clarity. So make sure to overcome barriers and make communication clear and confusion free. Thank you. जनाब हमीद महमूद साहब, एक्सलेंट प्रेजेंटेशन, एक्सलेंट। ठीक है जी, वेरी गुड, वेल डन। सर आपको मेरी प्रेजेंटेशन मिली? मैं ढूंढ रहा हूँ भाई, सब्र करो, मैं भी यही हूँ, आप भी यहीं, घबरा क्यों रहे हो तुम? सर वो प्रेजेंटेशन की कोई टेंशन होती है। अच्छा, जमाल साहब हैं नहीं है? फर्रुख,
ये अभी एक साहब को मैंने सवात वैली वाले साहब कौन से हैं, उनकी प्रेजेंटेशन लगाई थी, वो गायब हो गए। मुराद मौजूद हैं? ये सब लोग जो है ना, सर मैं मौजूद हूँ, सैफ अली खान। सैफ अली खान की मैं ढूंढता हूँ प्रेजेंटेशन भाई। अहमर आप मौजूद हैं? यस सर। तो मैं तो आपको 2 दफा प्रेजेंटेशन आपकी लगा चुका हूँ और आप बोल नहीं रहे हैं उसके अंदर। नो सर, मुझे तो आवाज नहीं आई थी सर। एक मिनट। जी जनाब अहमद साहब। जी अहमद साहब बिस्मिल्लाह कीजिए। Yes, sir. Assalamu alaikum to all of you. First of all, I am introduce myself. This is Mohammad Ahmad Iqbal. I am from Hamdan University in Mechanical Engineering Department. सबसे पहले my topic is Honda Civic. Honda Civic बेसिकली क्या है? Honda Civic एक गाड़ी है जो मैन्युफैक्चर हुई थी, Honda कंपनी ने मैन्युफैक्चर की थी इसे, और Honda इज़ अ जैपनीज कंपनी। और जो ये प्रेजेंट हुई थी 1972 में, ये सबसे पहली गाड़ी लॉन्च हुई थी जो होंडा कंपनी ने लॉन्च की थी। नेक्स्ट स्लाइड। अब इसके आ हम गए आ आप जाते हैं नेक्स्ट पार्ट्स स्लाइड वगैरह में। जनाब। जैसे सबसे पहले अहम चीज़, यस सर, तो अब हम इसमें आ जाते हैं पार्ट्स वगैरह में। जैसे कि सबसे मेन पार्ट जो होता है गाड़ी का, वो होता है इंजन। इंजन में बहुत ज़्यादा कैटेगरीज होती हैं। अब ये जो मैंने 3 कोड लिए इंजन के, ये अहम अहम कोड्स हैं। अब जैसे आजकल जो चल रहा है इंजन, वो ये थर्ड वाला चल रहा है, 2.0 LK20 C1 VTEC टर्बो DOHC 14 वाला। और वैसे बेसिकली जो 1.6 1.8 वाले जो हैं ये भी यूज़ होते हैं, लेकिन बेसिकली जो टर्बो गाड़ी और जैसे ABS गाड़ीज़ वगैरह जो होती हैं, जो पावर स्टेयरिंग वगैरह अच्छी जैपनीज़ गाड़ियाँ जो होती हैं, उसमें ज़्यादातर टर्बो वाला इंजन यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट स्लाइड। अब हम आ जाते हैं गाड़ी के डैशबोर्ड की बात करना है। डैशबोर्ड क्या होता है? जिसमें बहुत से फंक्शन मौजूद होते हैं। जैसे इंस्ट्रूमेंट पैनल होता है, इंस्ट्रूमेंट पैनल के बाद तमाम चीज़ें, इंडिकेटर हो गया, इंडिकेटर हमें बताता है कि हमें राइट साइड जाना है, लेफ्ट साइड जाना है। ये इमरजेंसी इंडिकेटर होता है उसमें। ये रोड पे जितने भी जो साइड पे, राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे लोग चल रहे होते हैं, तो वहाँ से उनको पता लग जाता है कि इमरजेंसी इंडिकेटर इन्होंने दिया है, तो कोई मसला हुआ होगा या कुछ हुआ, इंडिकेटर इसलिए होता है। और ऑयल प्रेशर होता है, चार्ज सिस्टम भी होता है, जैसे ABS भी कहते हैं हम लोग। आपकी आवाज कट रही है। हेलो हेलो। सर आवाज आ रही है मेरी? जी अब आ रही है, बीच में कट गई थी आवाज। जी बोलिए। हेलो। जी बोले बोले। यस। हेलो। हेलो। जी बोले अहमद। यस आपकी सर। आवाज आ रही है, आप बोलिए। अहमद नहीं, मैं कह रहा हूँ सर, जी बोले, आपकी आवाज आ रही है। स्लाइड जो है वो, यस सर, कंटिन्यू स्लाइड करें, शो आप नहीं हो रही मेरे कंटिन्यू करें। पास। सर आवाज तो आ रही है, लेकिन मेरे पास स्लाइड शो नहीं हो रही। मैं किस पे बोलूँ?
स्लाइड आपके पास शो नहीं हो रही है, ये क्या हो गई? 1 मिनट ठहरिए। अब आ रही है स्लाइड आपको नजर? हेलो? यस सर, अब आ रही सर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पहुँच गए थे। यस सर, आ रही है आवाज़, मुझे समझ आ गई सही। अब हम लोग यहाँ पहुँच गए थे डैशबोर्ड में। डैशबोर्ड में जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इंस्ट्रूमेंट पैनल होते हैं और बहुत से फंक्शन होते हैं और हर गाड़ी के फंक्शन अलग अलग लेवल के होते हैं। जैसे कि होंडा सिविक की हम बात कर रहे हैं, तो होंडा सिविक में जो फंक्शंस होते हैं वो ये हमारे पास सामने मौजूद हैं। जैसे लेफ्ट तो सभी को पता होता है कि क्या होता है। लेफ्ट इंडिकेटर होता है, राइट इंडिकेटर होता है, इमरजेंसी इंडिकेटर होता है, और इसी तरह एंटी ब्रेकिंग सिस्टम होता है, और एबीएस इंडिकेटर भी होता है, और व्हीकल स्टेबिलिटी भी होती है। ये तमाम फंक्शन होंडा सिविक में 2020 के मॉडल्स में मौजूद हैं डैशबोर्ड में। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। भाई आपका टाइम रन आउट हो रहा है, अगर आप इस तरह करेंगे तो हो गया, रह जाएगी अधूरी आपकी प्रेजेंटेशन। हैमर, सर मैं कह रहा हूँ नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट पे तो आ गया हूँ ना मैं, वेल्व पे आ गया हूँ, आपके सस्पेंशन सर पे ये हूँ। आगे वाली स्लाइड का कह रहा हूँ मैं, नेक्स्ट स्लाइड कह रहा हूँ आपको। आवाज़ आ रही है? यस सर, आवाज़ आ रही है मेरी आपको? जी, पावर शेयरिंग वाली की आप बात कर रहे यस हैं? सर, ठीक है। जी। यस ठीक है सर, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं सबसे अहम। बिल्कुल सर। सर अब हम आ जाते हैं सस्पेंशन बाय होंडा से। नो सर, इस दो पीछे से सर, इससे पीछे वाली इससे पहले सस्पेंशन जाऊं? वाली सर, सस्पेंशन। मैं 80 पे था, आपने कहा आगे चलें, चलें। यस सर, सस्पेंशन। आते हैं सस्पेंशन बाय होंडा सिविक। सस्पेंशन के अंदर क्या क्या मौजूद होता है? जो लेटेस्ट मॉडल है उसके अंदर देखिए नंबरिंग डली हुई है। अब नंबर 1 पे जो है वो हमें पता है कि ये क्या है, इंक्रीज हायर डैम्पिंग रेट है, और ये डंपर का साइज भी बताता है। और ये नंबर 2 पे क्या है, ये जंपर है और नंबर 3 पे हमारे पास जो है वो थिकर स्टेबलाइजर बार है, और नंबर 4 में बुलेट होता है जो सॉफ्टनेस पैदा करता है, और उसके बाद इंक्रीज रेजिडिटी और बियरिंग साइज होता है। ये वाली सस्पेंशन है जो लेटेस्ट मॉडल्स में अभी चल रही है। नेक्स्ट स्लाइड पर। आपका 2 मिनट रह गए हैं सिर्फ। सर नेक्स्ट स्लाइड, पावर स्टीयरिंग वाली। पावर शेयरिंग पे ही हूँ मैं भाई। अब हम आ जाते हैं पावर स्टीयरिंग में। पावर स्टीयरिंग के अंदर बहुत बहुत से फंक्शन होते हैं जैसे, यस सर, पावर स्टीयरिंग में बहुत से फंक्शन होते हैं जैसे कि टॉर्जन बार, इनपुट शाफ्ट होती है, इंटरफेस सर्किट होता है, सेंसर कॉइल होती है, पिनियन गियर्स होते हैं, स्लाइडर होता है, विंग्स होता है, गाइड पिन होता है, स्पाइरल ग्रोव होता है। सही। नेक्स्ट स्लाइड सर। सर नेक्स्ट स्लाइड। एबीएस ब्रेक पे ही हूँ, नेक्स्ट स्लाइड आपकी जो है, या इसको स्किप करना है? एबीएस ब्रेक सर। एबीएस ब्रेक क्या होता है सभी को पता होगा। एंटी ब्रेक सिस्टम होता है जो हाइड्रोलिक यूनिट जिसमें मौजूद होता है, और ब्रेक लाइंस होती हैं, एबीएस वार्निंग लाइट भी होती है। ये हमें इंडिकेटर बता के भी दे देता है कि ब्रेक हम लोगों के काम कर रहे हैं, या कुछ ब्रेक ऑयल का इशू है, या कोई भी इशू है, तो ये हमें इंडिकेटर कर देता है। और इसी के अंदर बहुत से फंक्शन हैं जो कि मौजूद हैं अगर हम पढ़ें तो। और एंटी लॉक ब्रेक इसी को ही कहते हैं, और इसके अंदर व्हील हब्स भी होते हैं और स्पीड सेंसर भी होता है। नेक्स्ट स्लाइड सर। You have got only 1 minute left to complete the presentation. यस सर। ट्रांसमिशन होती है होंडा सिविक मैन्युफैक्चर बाय बोथ ट्रांसमिशन ऑटोमेटिक एंड मैनुअल। ऑटोमेटिक गाड़ी भी आती है और मैनुअल गाड़ी भी आती है, और ज़्यादातर आजकल के जो दौर में ऑटोमेटिक गाड़ी चल रही है। जैसे होंडा में बहुत सी गाड़ियां जो ऑटोमेटिक ज़्यादातर चल रही हैं, और मैनुअल गाड़ियां भी आती हैं। नेक्स्ट स्लाइड सर।
कंक्लूजन, जिसमें आप लास्ट में हम पहुंचते हैं कंक्लूजन में, इससे हमें पता लग जाता है कि अभी जो हमारी गाड़ी थी बहुत पावरफुल और बहुत अट्रैक्टिव बॉडी वाली गाड़ी थी, और 1.5 लीटर टर्बो चार्ज था इसमें इंजन का, जो बताया था मैंने आपको, और विच गिव्स अ व्हीकल मच बेटर एक्सेलरेशन। द न्यू aerodynamic body design is also attractive and the car offers more space in the cabin। तो बहुत से स्पेस हैं और बहुत अट्रैक्टिव कार है और बहुत एरोडायनेमिक बॉडी है और अच्छा डिज़ाइन है। थैंक यू, उम्मीद है आप सबको मेरी ये प्रेजेंटेशन अच्छी लगी होगी। नहीं जनाब, मैं आपको बता दूं, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं Thank लगी you so आपकी much. प्रेजेंटेशन। उसको देखने के बाद कम से कम मैं तो होंडा सिविक कभी नहीं खरीदूंगा। अगर आपकी प्रेजेंटेशन की बुनियाद पे मुझे गाड़ी खरीदनी हो तो कम से कम मैं नहीं खरीदूंगा, बिकॉज यू फेल टू एक्सप्लेन आप क्या बताना चाह रहे हैं। वही अगेन जो मैंने सबीन को बात की थी कि आपके ग्रे बैकग्राउंड पे आप व्हाइट फॉन्ट के साथ हमें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और वही चीजें आप बता रहे हैं और प्रॉपर एक्सप्लेन भी नहीं आप कर पाए चीजों को। तो इट वॉज अ गुड प्रेजेंटेशन एट ऑल। ठीक है जनाब। आप टॉपिक जब सिलेक्ट करते हैं, टॉपिक सिलेक्ट करने के बाद उसके अंदर आप देख तो लें कि आप क्या लोगों को दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है ना, और उसको बड़ा क्लियर कंसाइज बात करें आप उसके ऊपर। फारूक साहब मौजूद हैं? यस सर। चलिए फारूक साहब शुरू कीजिए जल्दी से। स्मार्टफोन। फारूक रजा साहब। फर्रुख रजा साहब। फर्रुख, आर यू देयर और यू नॉट देयर? क्या बात है, कोई बोल क्यों नहीं रहा है? सर मेरे ख्याल से वो ऑनलाइन नहीं है। अभी तो उन्होंने कहा है कि जी मौजूद हूं, और अभी कह रहे हैं कि नहीं हूं मैं मौजूद। अच्छा, मेरा जूम का टाइम खत्म हो रहा है, मैं वीडियो सेव करके वापस आता हूं मैं। ओके सर।